Good morning, students. Welcome to the English class. Today we will read lesson number 6, Expert Detective. Before you read, Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scared? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. निशाद जो कि 7-year-old बॉय है, उसको 7 भी कहा जाता था क्योंकि उसके नेम का ही मतलब था संगीत के पैमाने का 7वां सुर। और उसकी 10 years old सिस्टर माया मिस्टर नाथ के बारे में बड़े क्यूरियस थे जानने के लिए। तब एक दिन बच्चों को मिस्टर नाथ से मिलने और बात करने का मौका मिलता है। क्या वो एक भागा हुआ बदमाश है? क्यों उसके चेहरे पर भयानक निशान है? उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है? निशाद की मदर जो कि एक डॉक्टर है, मिस्टर निशाद को एक पेशेंट के रूप में जानती हैं, जो एक बहुत विनम्र स्वभाव का है। As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. He can't be poor if he is a crook on the run. I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room." अब निशाद और माया की आपसी जो है वो बातचीत चल रही है। जब हम वापस चिकित्सालय की तरफ चले तो साथ ने क्या कहा, वह एक राक्षस की तरह नहीं दिखता माया, पर क्या तुमने देखा है वह कितना पतला है? हो सकता है वह बहुत गरीब हो और खाना भी नहीं खा सकता हो। वह गरीब नहीं हो सकता यदि वह भगोड़ा बदमाश है तो, मैंने उसे बताया। शायद उसने उस कमरे में लाखों रुपए छिपा कर रखे हुए हैं। Do you really think he is criminal, Maya? He doesn't look like one. Nishad looked doubtful. Of course, he is 1, 7, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. क्या तुम वास्तव में सोचती हो कि माया कि वह एक अपराधी है? वह एक अपराधी जैसा नहीं लगता। निशाद शक करने लगता है। ऑफ कोर्स, अवश्य ही वह है 7, मैंने कहा, और अवश्य ही वह भूखा नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश उसका भोजन नीचे रेस्टोरेंट से लेकर आता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशाद said, निशाद ने कहा, लेकिन माया, मेहता जी ने तो, मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया था कि वो कहीं काम नहीं करता, इसलिए उसके पास भोजन के लिए पैसे कैसे हो सकते हैं? Exactly, I exclaimed, he must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and... What rubbish, Nishad interrupted. I know, I'm right, stupid. I told him. By the way, 7, did you see his scars? I couldn't. It was too dark. But I bet he got them during a shootout with a police or something. Mummy told us quite clearly they were burned scars, Nishad said firmly. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. सही है, मैं हैरान हुआ इस बात को कहते हुए। उसके पास कहीं ना कहीं छुपाया हुआ पैसा ज़रूर है।
शायद उस कमरे में, उस ट्रंक में। यह शायद चांदी और सोने के गहनों से भरा होगा। क्या बकवास है, निषाद ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा। मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ मूर्ख, मैंने उसको बताया। कोई बात नहीं साथ, क्या तुमने उसकी खरोंचें देखी? मैं नहीं देख पाई, बहुत अंधेरा था, परंतु मैं शर्त लगाती हूँ कि वो पुलिस की फायरिंग में ही लगी हुई है। निषाद ने क्या कहा उसके बाद? मम्मी ने हमें बताया था कि वे जले हुए के निशान थे। शायद पुलिस को उसके घर से खदेड़ने के लिए आग लगानी पड़ी होगी। मैंने सजेस्ट किया। साथ को विश्वास नहीं हो रहा था। ऑन द मंडे following Mama's birthday, Seven went along with her to the clinic at Girgaon. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. Seven had been quite upset about Mr. Nath's grand appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." मम्मी के जन्मदिन के अगले दिन मंडे को साथ जो है वो अकेला उनके साथ गिरगाम में जो क्लिनिक है वहाँ गया, क्योंकि मैं एक स्कूल की फ्रेंड के साथ इवनिंग स्पेंड कर रही थी। जब वे लौटे, निषाद ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ से मिलने गया था वो, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, नाराज़ हो गई उससे कि वो मुझे वहाँ क्यों नहीं लेके गया। साथ मिस्टर नाथ के पतला दिखने पर बहुत परेशान था और उसे पक्का विश्वास था कि वह भूखा मर रहा था। उसने मुझे बताया कि उसने ज़ोर से मिस्टर नाथ के दरवाजे को खटखटाया उस इवनिंग में और कहा, जल्दी दरवाज़ा खोलो मिस्टर नाथ। A man had opened it and asked him lost another marble. He had obviously recognized my brothers. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. Did you get a chance to peek into the trunk, Sivin? I asked. Nishad looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या एक और कंचा हो गया है? वो स्पष्टतः मेरे भाइयों को जानता था। नहीं, निषाद ने कहा। वह उस आदमी के हाथ को अपने हाथ में ले चुका था और इस पर चॉकलेट की सी एक बार रख दी। क्या तुम्हें उस ट्रंक में झांकने का मौका मिला साथ? मैंने उससे पूछा। निषाद परेशान दिखा। उसने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा। उसने कहा। तब वो मुस्कुराया। लेकिन मैंने कुछ पा ही लिया माया। उसके बाद मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया जहाँ रमेश काम करता था और उससे बातचीत की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप you questioned him properly. Seven looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening, and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food. 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. श्रीमान जासूस, तुम्हारे लिए बढ़िया है, मैंने कहा और उसकी पीठ थपथपाते हुए। मुझे आशा है कि तुमने उससे उचित प्रश्न पूछे होंगे। साथ जो है वो शांत दिखा। रमेश ने मुझे बताया कि वह मिस्टर नाथ के लिए सुबह और शाम 2 वक्त का खाना ले जाता है और 2 कप चाय, एक सुबह और एक दोपहर बाद।
रमेश कहता है कि खाने में उसकी कोई विशेष चीज़ नहीं है, वह हमेशा एक जैसा ही खाना खाता है, 2 चपाती, थोड़ी सी दाल और एक सब्ज़ी। मिस्टर नाथ कैश देते हैं, जो भी अमाउंट उनका होता है, और अच्छी खासी टिप भी देता है। स्टूडेंट्स, we will read this chapter till here and complete it tomorrow. Thank you.